Hello friends, I am back again with a review of another Bollywood movie, Chehre, released on 27th August. Basically, it was scheduled to release in April, but because of this pandemic situation, again it got pushed and released recently. Finally, I got to see the movie in the theatre. I'm from Kolkata, so lucky enough because महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, थिएटर्स अभी तक खुले नहीं क्योंकि उधर हालत अभी तक ठीक नहीं है. सो आते हैं मूवी के बारे में. बेसिकली चेहरे जो मूवी है इट इज़ अ थ्रिलर एंड इट इज़ बेस्ड ऑन an original actually story है, novel है, basically a German novel, A Dangerous Game. It is based on that novel, A Dangerous Game, and it's an intensifying thriller movie. This movie is directed by Rumi Jaffrey basically, and this movie has a huge star cast. Basically it's a movie जिसमें star cast जो भी actors and वगैरह हैं उनके जो characters है all are members of the guiding force of law. Basically अमिताभ बच्चन है इनमें. अमिताभ बच्चन साहब plays लतीफ़ ज़ायदी. उनका पेशा था basically he is a retired public prosecution lawyer. Then we have Anu Kapoor who plays the role of Paramjit Singh Bhallar, and he was basically the defense lawyer, now retired. Then we have Dhritimant Chatterjee as Justice Jagadish Acharya. He is also a retired justice of the court. And then we obviously have another character, Raghubir Yadav as Hariya Jadhav. He was basically the henchman, जिसको हम कहते हैं henchman. उनका रोल क्या है. And obviously important role में है इमरान हाशमी, obviously one of the lead basically we can say. He's the main protagonist of the movie. Sameer Mehra, he is a business tycoon, CEO of an ad agency. Then we have Riya Chakrabarti as Anna. She is basically her role is of a housemaid. Then we have Siddhant Kapoor as Joey and Sameer Soni as G.S. Oswald, and obviously not to forget obviously Crystal D'Souza as Natasha Oswald. So strong star cast है, इतने senior actors है. अभी मूवी के बारे में अगर हम बात करें तो मूवी in a nutshell are not obviously it is a thriller movie. And so I'll not let you give the spoilers and destroy the essence of the movie. So basically the movie is set in a mountainous, snowy Himalayan region basically. So we see like Imran Hashmi, who plays the role of Sameer Mehra. He is going to Delhi and basically on रास्ते पे जाते जाते बहुत snowfall start हो जाता है. So he drives to another road, takes another direction where it is written that Delhi is shortcut. Basically he takes a shortcut route. There उधर उसको मिलता है वो भल्लार, means Anu Kapoor Bhallar, and he says like this road is not at all good, you will face great danger over here. But Imran Hashmi was like, oh, he doesn't bother to it basically. But suddenly what happens, a tree trunk basically falls on his car and his road gets blocked. Then Anu Kapoor उधर पहुँच जाते हैं and उधर वो आके बोलते हैं कि पास ही में मेरा फ्रेंड का घर है, क्योंकि इधर आपको कोई होटल वगैरह मिलने वाला तो नहीं है, तो आप मेरे घर में मेरे फ्रेंड के घर में आके रुक सकते हैं जब तक ये वेदर एंड ऑल सब ठीक ना होता है. तो वो जो फ्रेंड के घर में ले जाते हैं, देयर वी गोइंग टू सी ऑल द मेन कैरेक्टर्स, बेसिकली ऑल द सीनियर एक्टर्स. एक्सक्यूज मी. वो जो घर है, फ्रेंड का घर है, वही बेसिकली जस्टिस जगदीश आचार्य जो धृतिमान चैटर्जी प्ले कर रहे हैं उनका घर है. एंड अनु कपूर हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिम, एंड देयर ऑल्सो दे सॉ रघुवीर यादव जो एक्टर है जो हरिया का रोल प्ले करता है. सो दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट, दे वर वेटिंग फॉर अनदर फ्रेंड टू कम, दैट इज अमिताभ बच्चन, लतीफ़ ज़ायदी. सो बेसिकली यही है. देयर इमरान हाशमी गोज देयर एंड they had some basic introduction like मैं कौन हूँ, आप कौन है, आप क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब basic introduction चलता है. And रिया चक्रवर्ती का भी introduction, she plays the role of Anna the maid. And she has also some character arc, some past, some character detailing जो हमें बाद में obviously पता चलेगा, कुछ है डेप्थ है character में. Then comes obviously अमिताभ बच्चन, लतीफ़ ज़ायदी, and there to kill the time basically they decide that we are going to play a game. क्या game होगा? We will do a mock court case type, and there we will do justice,
एंड सजा भी सुनाया जाएगा एंड ऐसे मॉक एक ट्रायल होता है. हम हमेशा ये गेम खेलते हैं, तो आप भी गेस्ट हो, सो टू किल द टाइम बेसिकली वी आर गोइंग टू प्ले दैट गेम. सो दिस इज द बेसिक थिंग. एंड पूरे फिल्म में ये कोर्ट केस का ट्रायल, जो मॉक ट्रायल वगैरह होता है, इसी के ऊपर पूरा फिल्म है. बेसिकली एक ही मतलब जो बंगला दिखाया गया था ऋद्धिमान चैटर्जी का, जो दैट इज़ काफ़ी आलीशान, बहुत ही हाई फाई लग्जूरियस है एंड इन इंग्लिश स्टाइल. एंड देयर यू विल सी ऑल द कैरेक्टर्स, बेसिकली सब एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्रेम. तो बेसिकली द गेम गोज ऑन एंड इमरान हाशमी समीर बेसिकली पहले सोचा था वो एक कोई बात नहीं, शेयर गेम, सो वो राजी हो गया था. बट एज द गेम प्रोग्रेसेस ही रियलाइजेस दैट इट इज गेटिंग क्वाइट डेंजरस. सो बेसिक कहानी यही है. क्या होता है आगे आगे जब जाता है गेम, क्या डेंजर आता है, एंड व्हाट ऑल द कैरेक्टर्स जो सीनियर मेंबर्स है ऑल फ्रॉम द गाइडिंग लॉ फोर्सेस पर्सन, बेसिकली वो लोग किस केस के बारे में बात करते हैं एंड ऑल. सो दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. And also there is a love angle between Imran Hashmi's character and Crystal D'Souza, who plays Natasha Oswal. So you will see that basically कैसे उनका character development होता है, what are the connections and what happens ultimately. Basically that forms the main storyline, and I'm not going to reveal, I'm not going to give any spoiler because it will totally kill your interest. So अगर हम फिल्म को अभी डाइसेक्ट करते हैं तो फर्स्ट आते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं. The movie basically is directed by Rumi Jaffrey and written basically by Ranjit Kapoor and Rumi Jaffrey himself. Story Ranjit Kapoor का ही है. Rumi Jaffrey basically, and what we'll say, we know him basically of directing basically of comedy movies, writing comedy movies, but this was a thriller genre जो कि बहुत ही बाखूबी इन्होंने लिखा है. मतलब इट्स अ सरप्राइज, बट कि कॉमेडी मूवी के राइटर जो कॉमेडी लिख के आए हैं, बेसिकली he is writing a thriller, and that too such a edgy thriller, what you can say. So yeah, the screenplay is quite engaging. It will keep you on the edge of your seat. You will be like getting impatient what is going to happen, what the outcome will be as the case progresses. It quite engages you with the story. The dialogues are very nice, mind blowing. जितना ज़रूरी है उतना, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम भी नहीं है. तो बेसिकली यही है. फर्स्ट हाफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जिस तरह से नैरेटिव है ना, और जिस तरह से एम्बियंस क्रिएट किया गया है, लाइक इट्स अ वेरी बिग हाउस, बिग मैंशन, एंड देन बाहर स्नोफॉल हो रहा है, इट्स अ हिली एरिया, एंड ऑल द पीपल आर लुकिंग अ लिटिल बिट शेडी. फोन का नेटवर्क नहीं लग रहा है, एंड उधर वी आर सीइंग ऑल कैंडल्स एंड ऐसे सब लैंटर्न्स एंड ऑल लाइट चल रहा था. एंड दे बेसिकली दे वर discussing about the case. Maybe it is a mock case trial, but for me it gives you a sensation of fear, a sensation of suspense and sheer tension build up होता है first half में basically. Second half is also very good. हाँ, at some point it goes little bit slow, little bit falls off, but ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट ही लॉस्ट हो जाएगा. It will not totally switch you off from your main interest point. So this much engaging is the total screenplay. The film is basically 2 hours 15 minutes long, quite long enough to show all the incidents that have taken place. So this is the thing. And movie में गाना, दो ही गाने हैं. One the song is Rang Darya and the another one is a title track of चेहरे. So चेहरे का जो title track जो आता है ना, उस टाइम जो sequences वगैरह होता है, that is quite ravishing, and आपको मतलब एकदम exactly lines and scenes in so good sync. And Rang Darya is obviously a wonderful romantic song. एक ही या दो ही गाना है, गाना बहुत ही अच्छा है. तो ये हुआ हमारा स्क्रीन प्ले एंड सॉन्ग्स के बारे में. अभी एक नज़र डालते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में. ऑब्वियसली क्या बोले, ऑल दे आर ऑल सीनियर एक्टर्स. सो फर्स्ट ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन साहब, उनका जो रोल था एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर लतीफ़ ज़ैदी, जिस तरह से बिल्ड्स अप द केस, फाइंड्स आउट द पॉइंट्स लाइक या दिस पॉइंट शुड बी brought about in discussing this case and all, it was just hats off to his performance. उनका तो क्या बोलूँ, he is a senior actor and obviously he always keeps us entertained and keeps us like oh wow, impresses us. तो वही था. इतने सारे सीनियर एक्टर्स, इतना भारी भरकम क्या बोलूँ एक्टर्स थे, लाइक
अमिताभ बच्चन, अनु कपूर साहब, धृतिमान चैटर्जी, इन लोगों के सामने सबका रोल बढ़िया था एकदम। और अनु कपूर का क्या है ना, उनका एकदम अच्छा है ना, सीरियस डायलॉग भी इतनी मुस्कुराते हुए इतने इजीली बोल देते हैं ना। ही हैज अ वेरी फंकी टाइप ऑफ कैरेक्टर बट सीरियस अंदर से, बट यू विल नेवर फील लाइक ओके ही इज बोरिंग यू, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, बोरिंग बुढ़ा है ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल। उनका रोल बहुत एकदम शुरुआत से, जब से उनका एंट्री हुआ है तब से उनका जो लास्ट तक का जो किरदार है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फनी टाइप, येट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ। एंड देन इन सब मतलब क्या बोलूँ, इन सब सीनियर माहिर एक्टर्स के सामने ऑब्वियसली इमरान हाशमी इज ऑब्वियसली अ वेरी ग्रेट एक्टर। वी वर लाइक ओके, इतने सीनियर एक्टर्स के सामने उनका क्या कम पड़ जाएगा प्रेजेंस, बट दैट इज नॉट एट ऑल द केस। ही ऑल्सो जस्ट आउटशाइंस, बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना काम किया है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था, जो भी उनको किरदार दिया गया था, बेसिकली इट फेल्ट रियली ऑसम। रिया चक्रवर्ती का जितना भी पार्ट था, छोटा पार्ट था, इट वॉज ऑल्सो गुड, शी एक्टेड वेल। कुछ कैरेक्टर में डेप्थ था, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, व्हाट इज द पास्ट बिहाइंड हर, वो हमें आगे जाके ऑब्वियसली पता चलेगा। एंड क्रिस्टल डिसूजा एज नताशा ओसवाल वाज क्वाइट चर्पी एंड ब्यूटीफुल। बहुत ही क्या बोलूँ, एक फिल्म में होता है ना एक फ्रेशनेस डालने का, सो शी प्लेड दैट पार्ट बेसिकली। समीर सोनी का छोटा सा ही पार्ट था, बहुत ही छोटा सा, एज मिस्टर ओसवाल जितना था, he did it part very well. Basically all the actors did a great job. And one thing I would like to mention, फिल्म के अंत में एकदम एंड नहीं, उसके थोड़े पहले, ऑलमोस्ट एट द एंड बेसिकली द सेकंड हाफ, एक मोनोलॉग सीन आता है अमिताभ बच्चन साहब का। इट वाज नियरली 13 to 14 मिनट्स का एक मोनोलॉग सीन था। आई मीन जनरली पीपल गेट्स बोर्ड टू हियर सच अ लॉन्ग मोनोलॉग सीन, बट व्हेन यू हियर इट गूज़बम्स आ जाएगा आपको। बेसिकली कितनी अच्छे से, कितना व्हाट टू से, एकदम ऐसा लगेगा ना कि हर एक वर्ड्स आप फील कर पा रहे हो। अमिताभ बच्चन इज अ स्टैंड आउट एक्टर, ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस तो क्या हम जज कर सकते हैं, बट बेसिकली क्या था, बहुत ही लंबा एक था, एक विषय में, एक टॉपिक पे he was giving out some explanation, discussing some points. Yeah, it was very long, but it was, each and every point was like लिसन वर्दी, इंटरेस्ट वर्दी। आपका पैशंस और इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। मे बी पीपल लाइक ओके इतना लंबा मोनोलॉग है, इंटरेस्ट चला जा रहा है, ओके कुछ और करते हैं इस टाइम, बट ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑब्वियसली ये ज़रूरी भी था, दे वर डिस्कसिंग ऑफ समथिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे लेट इट बी, वो हम नहीं बोलेंगे, वो आप खुद देख लेना मूवी जब आप देखोगे। बट उसमें जो भी पॉइंट जैसा था ना, बेसिकली हम अमिताभ बच्चन का ऐसा मोनोलॉग पहले भी देख चुके हैं इन द मूवी पिंक, 102 नॉट आउट। सो जिस तरह का उधर भी था मोनोलॉग, उससे छोटा था डेफिनेटली, उसी तरह का है पिंक मूवी में जिस तरह का मोनोलॉग था ना, बेसिकली उतना ही है। उसमें भी उन्होंने एकदम क्या बोलूँ, ही जस्ट रॉक्ड इट, हियर ऑल्सो ही रॉक्ड इट। सो दैट वाज वेरी इंटेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी। सो एक्टर्स का तो जस्ट ये हो गया एक्टर्स का पार्ट। और अभी बात करते हैं डायरेक्शन की। रूमी जाफरी ऑब्वियसली उनका डायरेक्शन था फिल्म। जिस तरह से इंटरेस्ट रखते हुए सभी सीन्स को सेटअप किया गया, माहौल जिस तरह से एम्बियंस क्रिएट किया गया। ये तो फर्स्ट हाफ जब खत्म होता है ना थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ के बाद, एट अ सर्टेन पॉइंट दैट लाइट गोज ऑफ, आपका इंटेंशन और टेंशन हो ना अंदर अंदर बढ़ता, अभी लाइट ऑफ हो गया, एक तो इतना सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर, अभी क्या होगा। ये जो मतलब स्क्रीन प्ले के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन का भी पॉइंट्स एंड ऑल एवरीथिंग जो मेंटेन किया है, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल जॉब ही डिड। मूवी की बहुत ही एक ख़ास बात क्या है ना, इट क्रिएट्स सच अ सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर, लाइक कोर्ट केस ट्रायल मॉक होगा एंड ऐसा है कि एंड में अगर जो दोषी फाइनलाइज्ड होगा उसको सज़ा भी दिया जाएगा। एंड क्या लिटरली एक फांसी का मंच टाइप का भी तैयार किया गया। जो हमारा हेंचमैन जो हरिया थे, उसको ही वॉज अ हेंचमैन बेसिकली, सो ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पनिश दोज पीपल, ये भी था। सॉन्ग्स की तो बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ज़्यादा सॉन्ग्स तो है नहीं, 2 ही सॉन्ग्स हैं। एडिटिंग ऑफ दिस मूवी इज़ वेरी क्रिस्प। एडिटर इज़ बुधादित्य बैनर्जी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया सा काम किया है, बंगाल की है, उन्होंने काफ़ी फेमस एडिटर है। एंड जिस तरह से उन्होंने एक एक सीन को कट किया है ना, ऑडियंस की इंटरेस्ट बनी रहेगी, दे विल बी लाइक केप्ट ऑन द एज ऑफ द सीट। साथ में सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही ऑसम है। जिस तरह से होल जो लग्जरियस बिल्डिंग जो दिखाया गया, मैंशन था जगदीश आचार्य साहब का,
किस तरह से ऑसम वे में लाइटनिंग वगैरह बहुत ही अच्छा था, साथ में जो माउंटेनस एरिया था, बर्फ़ें गिर रहे थे एंड ऑल द एटमॉस्फेयर which was captured basically. It was really awesome. It really added another flavor to the entire already good film. Basically the whole movie is set up inside a room. Basically एक ही हॉल पे सब लोग बैठे हैं एंड बातचीत कर रहे हैं, पूरा मूवी उधर ही होता है एंड या सम फ्लैशबैक्स ऑब्वियसली दिखाया जाता है. So this movie is really awesome and it maintains जो जर्मन स्टोरी ओरिजिनल था द डेंजरस गेम, उसी से बेस्ट स्टोरी है. बट व्हाट टू से मीन्स हम हमेशा बॉलीवुड मूवी में बहुत देख चुके हैं लाइक मूवी से किसी स्टोरी से नॉवल से अडॉप्ट तो किया गया है बट इट डजंट फॉलो द एंटायर स्टोरी लाइन, जो भी अपने हिसाब से किया है ना दैट डजंट लुक गुड. बट हियर each and everything falls into the correct place and each and everything just stands out really in an awesome way. बॉलीवुड मूवी में ज़्यादातर हम ऐसे टाइप के थ्रिलर देखने को हमें मौका नहीं मिलता. यू विल बी लाइक टेंस्ड इन द लास्ट 1 minute ऑफ द फिल्म. यू विल बी लाइक what's going to happen next. You will get surprised in each and every moment. यही है ना दर्शकों का कि हम जब कोई थ्रिलर देखने बैठे हम आसानी से अगर गेस कर ले कि what is going to be the climax and what's the fun in it. But that is not the case here in this movie. It will keep you at the edge of your seat. Hold your patience, hold your entire energy and hold the tension, hold your breath till the last minute basically. And the last जिस तरह से movie end होता है bang on, क्या एंडिंग था. आई वाज लाइक क्लैपिंग इन द थिएटर जब वो एंड हुआ ना. आई वाज लाइक वाओ व्हाट एन एंडिंग. एंड इस तरह का गेम बेसिकली इट्स अ गेम, इट वाज अ मॉक कोर्ट केस ट्रायल बेसिकली. इस तरह का गेम जिस तरह से हम देखें ना ऐसे हम ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज में हमें देखने को नहीं मिलता है. इस तरह का थीम नहीं मिलता है. या अगर इस तरह के गेम की बात करें, गेम ओरिएंटेड मूवी, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड टेबल नंबर 21 व्हिच इज आल्सो अ वेरी ऑसम मूवी, ऑसम थ्रिलर. उधर भी एक तरह का गेम ऐसे था कि गेम खेलना एक बार शुरू करोगे तो आप गेम से बाहर नहीं आ पाओगे. गेम जितना आगे बढ़ते गया डेंजरस सिचुएशंस और भी आगे बढ़ते गया. तो इधर भी सिचुएशंस कुछ ऐसे ही तरीके से है बट इन अ डिफरेंट वे, शोन इन अ टोटली डिफरेंट कंटेक्स्ट. सो इफ आई हैव टू मार्क दिस मूवी, I'm not able to deduct any marks. I literally felt so overwhelmed. So I really want to give a 5 out of 5 to this movie. बहुत दिन बाद इतना अच्छा एक सस्पेंसफुल मूवी देखने का मौका मिला basically. But this movie, what I will say is basically mainly focused for the class audience. Masses को कुछ पार्ट्स अच्छा लगेगा पर बहुत सारे सीन्स उनको समझ में नहीं आएगा because it is a intensified thriller. थोड़ा सीरियस फिल्म है, समझने का बहुत कुछ है. दिमाग में आपको बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे होते हैं ना, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपका ब्रेन को ना यूज करना पड़ेगा बेसिकली. सो दैट इज टाइप ऑफ मूवी इट इज रियली गुड फॉर द क्लास ऑडियंस. मासेस को शायद उतना नहीं पसंद आएगा बट since I enjoyed this movie very much, so I want to give a clear-cut 5 out of 5 to this movie. What an acting, what a direction, and what a script. What more needed for making a movie much more beautiful? I think these are all the every aspects. So let me know in comments कि आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू. अगर कुछ पसंद आया हो तो वो कमेंट्स में बोलिए. अगर कुछ ना भी पसंद आया हो so let me know it in comments. And अभी भी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ लाइक. आज के लिए बस इतना ही. फिर से मिलोगी नेक्स्ट कुछ अच्छे बॉलीवुड मूवी के रिव्यू के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.